Hello guys, I am Shubham from Tutorials. So today in this video we are starting with the actual translation in prokaryotes basically. So before we start, subscribe to the channel and press the bell icon to get notified whenever the video is out. So let's get started with the video. इसके पहले हमने सब requirements जो है ट्रांसलेशन के लिए वो हमने देख लिए, राइट? सेम लाइक रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, इसमें भी 3 पार्ट्स में हम स्टडी करते हैं, जैसे कि इनिशिएशन, सेकंड इलोंगेशन एंड थर्ड टर्मिनेशन. ओके, सो इस वीडियो में हम सब कवर करेंगे. दिस विल बी अ वन टेक वीडियो of translation in prokaryotes. All the things we will be covering in this video, right? So first of all, initiation, we will start initiation. So initiation में क्या है? We know this is a mRNA. Okay, 5 prime end and 3 prime end, right? We are talking about prokaryotes. Okay, so इसमें स्टार्ट कोडॉन एंड स्टॉप कोडॉन होते हैं, राइट? सपोज दिस इज अ स्टार्ट कोडॉन एंड दिस इज अ स्टॉप कोडॉन. ओके, एंड हियर इसके पहले यहाँ पे साइट है नोन एज आरबीएस. ओके, अपस्ट्रीम ऑफ स्टार्ट साइट के ऊपर विच साइट? आरबीएस. आरबीएस इज व्हाट? बेसिकली राइबोसोम बाइंडिंग साइट, and that is specifically in prokaryotes known as shine dalgarno sequence. Dalgarno sequence. ओके, शाइन दालगार्नो सीक्वेंस. जैसे दालगोना कॉफी कोविड के टाइम में ट्रेंडिंग में हो गई थी, राइट? सो सेम लाइक दैट, दिस इज अ, डोंट कंफ्यूज विद दालगोना कॉफी. दिस इज दालगार्नो सीक्वेंस. ओके, शाइन दालगार्नो सीक्वेंस इज आल्सो नोन एज एसडी, राइट? एसडी सीक्वेंस. एंड यहाँ पे राइबोसोम बाइंडिंग साइट पे राइबोसोम आके बाइंड करेगा. ओके, so this is a mRNA. साइन कार्बोनो का सीक्वेंस you have to remember AGG AGG. This is a sequence AGG AGG. अभी यहाँ पे फर्स्ट वी नो कौन आएगा? स्मॉल सब यूनिट, राइट? स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम. Again I will draw your mRNA. I will highlight this region only. This is a SD. I will write here SD sequence, शाइन दालगार्नो sequence. स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम यहाँ पे आके बाइंड होगा, राइट? दिस इज अ small subunit of ribosome, right? So shine organo sequence पर small subunit of ribosome आके bind करेगा. Because why so? I will draw your ribosome. This is large subunit, this is small subunit of ribosome, right? Large subunit में peptidal transferase activity है, we saw peptidal transferase activity. Small subunit में mRNA binding activity, mRNA binding. We can say complementary sequence to the RBS, right? The ribosome is 70S in prokaryotes, 23S rRNA, and this is 16S rRNA, right? 16S. There are sites here. Ribosome में sites हैं, 3 sites.
These sites are for binding with tRNA, right? APE. Okay, APE. Ape. I told the word ape in the inverse order, right? APE. A stands for amino acylated tRNA. P stands for peptidal tRNA. Okay, and E stands for exit. Okay, see, पेप्टाइड बॉन्ड का जो फॉर्मेशन है पी साइड में होता है पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन, राइट? हाउ वी विल सी नाउ. And A is for amino acylated. Initiator tRNA comes and binds to P side. Initiator tRNA first, and other rest all other tRNAs bringing other amino acids. जो दूसरे अमीनो एसिड्स को लाएंगे वो सब A साइड पर and P साइड पर जो इनिशिएट करेगा, राइट? स्पेसिफिकली वी कैन से F met. I will write here F met वाला. F met tRNA and here rest others. We know F met is initiator, right? F met is the initiator amino acid. So we can see here this will be like complementary to 16S RNA. 16S rRNA, ribosomal RNA, will participate in the complementary binding with SD sequence, right? Of mRNA. Okay, this is a 5 prime, this is a 3 prime. Got it? इसके बाद क्या होगा? I will draw your ribosome, small subunit with 3 sides. This is 1, 2. Okay, so this is the A side, B side, and E side. Small subunit of ribosome, right? On the A side, there is a factor bound. Wait, let me change the color here. Okay, here is a factor bound IF1. Initiator factor. Okay, IF means initiation factor IF1, and यहाँ पे जैसे IF3. IF3. So A पर bind होता है IF1, right? A simple है. A is the first letter and also IF1 first 1 is binding to the A side. Why? इसका काम क्या है IF1 का as well as IF3 का? I will write somewhere separately. IF1 and IF3 initiator factors prevent premature binding of amino acylated tRNA. Premature binding तो रोकता है. Okay, amino acylated tRNA premature binding prevent होगी, as well as here also IF3 prevent premature binding of large subunit of ribosome. राइबोसोम की लार्ज सब यूनिट को बाइंड होने से रोकता है IF3, राइट? सो दिस आर द इनिशिएटर फैक्टर्स. सिर्फ प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन जो है वो बहुत इजी है एज वेल एज वेरी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है एक्चुअली. तो उसके कंपैरेटिवली प्रोकैरियोटिक इज वेरी मच इजी, राइट? तो दोनों का काम है प्रिवेंट प्रीमेच्योर बाइंडिंग IF1 IF3, बट IF1 इज अटैच्ड टू द A साइड, राइट? A साइड पर काम क्या है अमीनो एसिड tRNA जो है वो बाइंड होता है A साइड पर, बट IF1 अगर उससे बाइंड है तो वो अमीनो एसिड tRNA को बाइंड होने से रोकेगा, राइट? एज वेल एज जो E साइड है वहाँ पे IF3 बाइंड है, नॉट एग्जैक्टली एट द E साइड के बाजू में. ओके, दैट इज फॉर
premature binding, prevent of large subunit of ribosome, right? Okay, now this is the step फर्स्ट. अभी पी साइट जो है पी साइट फ्री है. ओके, फ्री है पी साइट. सो पी साइट पर आएगा इनिशिएटर टीआरएनए. ओके, इनिशिएटर टीआरएनए will come here and bind with the amino acid F-met टीआरएनए. और इससे लाएगा कौन? बेसिकली IF2. ओके, IF2 F-met टीआरएनए, that is initiator टीआरएनए. इनिशिएटर टीआरएनए. ओके, इसमें लॉजिक है, देखो हाउ टू रिमेम्बर दिस. ए साइड पर IF1 बाइंड है, ई साइड के वहां पे IF3 बाइंड है, सो फ्री है पी साइड. सो इनिशिएटर जो पहला टीआरएनए है दैट विल कम एंड बाइंड टू द पी साइड बिकॉज इट इज फ्री. तो पी साइड पर इनिशिएटर टीआरएनए बाइंड होगा और उसे लाएगा कौन? IF2. ओके, इनिशियल फैक्टर 2 along with GTP. ओके, इसे एनर्जी चाहिए, राइट? ये इतना व्हाट वी कैन से हैवी मॉलिक्यूल है, उसको लाना है तो एनर्जी चाहिए. तो एनर्जी कहाँ से मिलेगी? फ्रॉम द जीटीपी हाइड्रोलिसिस. तो जीटीपी चाहिए, हाई एनर्जी मॉलिक्यूल चाहिए उसे लाने के लिए, राइट? सो हियर वी कैन राइट थर्ड इनिशिएशन फैक्टर IF2. okay, IF2 bring initiator tRNA, that is F-met. okay, initiator tRNA to the P site. Got it? So this is the factors now. यहाँ पे mRNA भी अटैच है. ओके, आई एम नॉट शोन mRNA, बट याद रखना mRNA अटैच है और mRNA से अटैच होगा, राइट? सपोज आई विल ड्रॉ हियर विद द सेम कलर. दिस इज mRNA और ये यहाँ पे कहीं साइन अल्कानो सीक्वेंस था यहाँ पे, एंड यहाँ पे स्टार्ट कोडॉन है. स्टार्ट कोडॉन. ओके, अभी मैंने कलर किया सो दैट यू कैन सी, राइट? स्टार्ट कोडॉन के वहां पे टीआरएनए आके बाइंड हुआ. ओके, स्पेसिफिक बाइंडिंग, राइट? ओके, वन मोर थिंग इज देयर हियर. आई विल ड्रॉ योर स्पेसिफिक आरएनए नाउ. यहाँ पे कोडॉन है AUG, वी नो स्टार्ट कोडॉन, राइट? स्टार्ट कोडॉन. अभी यहाँ पे टीआरएनए आया. टीआरएनए विथ F-met विथ GTP. ओके, बट पहला ये ऐसा टिल्टेड होता है, राइट? लाइक दिस टिल्टेड. This is the mRNA, okay, and this firstly it is tilted. उसके बाद proper binding. Again I will draw here. Okay, so firstly this is tilted. Now proper binding is after proper binding. क्या होता है? सब फैक्टर्स अभी रिलीज हो जाएंगे. ओके, और वो जो जीटीपी है IF2 के साथ वहाँ पे जीटीपी हाइड्रोलिसिस होके IF2 along with GDP plus PI होगा. GTP hydrolysis as well as IF2. I have written IFC here. IF2, right? IF2 GDP plus PI as well as IF1, IF3. सब release.
फैक्टर्स का काम खत्म हुआ बिकॉज प्रॉपर बाइंडिंग हो गई टीआरएनए एज वेल एज एमआरएनए एंड वहां पे अभी एंटर होगा लार्ज सब यूनिट। लार्ज सब यूनिट एंटर्स। और एक चीज है यहाँ पे, दिस इज अ शाइन डायग्राम सीक्वेंस, राइट? और स्टार्ट कोडॉन यहाँ पे है। ओके, सो स्मॉल सब यूनिट फर्स्ट बाइंड्स टू द एसडी सीक्वेंस और वी कैन से राइबोसोम बाइंडिंग साइट। यहाँ पे बाइंड होगा स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, बट स्टार्ट कोडॉन तक दिस इज स्टार्ट कोडॉन। तो स्टार्ट कोडॉन को कैसे ढूंढेगा स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम? बाय द प्रोसेस ऑफ स्कैनिंग। ओके, मतलब ये राइबोसोम जो है साइन डायग्राम सीक्वेंस और राइबोसोम बाइंडिंग साइट पर बाइंड होगा एंड आफ्टर प्रॉपर्ली बाइंडिंग इट विल स्कैन। स्कैनिंग होगी, स्कैनिंग, स्कैनिंग फॉर द स्टार्ट कोडॉन और उसके बाद ये स्टार्ट कोडॉन पर आके ऐसा बाइंड होगा। Got it? And this will happen the next step. So this is the middle step. स्कैनिंग होगी, स्कैनिंग होने के बाद स्टार्ट कोडॉन को रिकॉग्नाइज करेगा and then the IF factors will be attached, okay, and initiator tRNA will come to the P site and bind, right? पहले वो tilted होता है, उसके बाद स्टेट कॉन्फ़िगरेशन में चेंज होगा tilted to proper binding and then these factors are released, okay? इनिशिएशन में there is formation of 30s initiation complex, initiation complex and 70s initiation complex. Okay, पहले 30s बाद में 70s. From the name only we can understand यहाँ पे सिर्फ स्मॉल सब यूनिट है, इसमें स्मॉल सब यूनिट एंड लार्ज सब यूनिट दोनों है, पूरा राइबोसोम। इसमें इसके साथ इनिशिएशन फैक्टर्स 1, इनिशिएशन फैक्टर्स 2, 2 नहीं सॉरी 3 है, as well as 2 is there along with initiator tRNA. Okay, understand? I have written I. I means initiator tRNA. Large subunit अभी यहाँ पे bind हुआ means IF3 will be released. Okay, IF3 जब रिलीज होगा तब large subunit आएगा, right? And that complex is known as 70s initiation complex, जिसमें small subunit, large subunit, initiation factor 1 है and initiation factor 2 है along with initiator tRNA. Got it? Easy है. First 30s initiation complex form, then 70s initiation complex. 30s में सिर्फ small sub unit, 70s में large sub unit ने enter किया और large sub unit ने enter किया तो IF3 will be removed. जो IF3 30s में present है, right? Got it? Now let's see the elongation process. Okay, let's draw again. यहाँ पे draw करेंगे फिर से large sub unit, small sub unit. यहाँ पे है mRNA, right? This is mRNA. Three sides APE. ओके, अभी यहाँ पर इनिशिएटर टीआरएनए है, ओके, इनिशिएटर टीआरएनए, दिस इज एफ मेट। तो द नेक्स्ट टीआरएनए जो होगा वो होगा अमाइनो आइसोलेटेड टीआरएनए। आई विल ड्रॉ हियर विथ अ डिफरेंट कलर। अमाइनो आइसोलेटेड टीआरएनए, राइट? फॉर एग्जांपल आई विल राइट अ ग्लाइसिन,
ग्लाइसिन। अभी इसे यहाँ पे आना है, तो दिस विल कम टू द ए साइड। ओके, दिस विल कम टू द ए साइड, बट इसे भी लाना होगा, राइट? खुद तो नहीं आएगा, तो कौन लाएगा इसे? इनिशिएशन फैक्टर EU। ओके, सी एक ट्रिक है। व्हाट इज अ ट्रिक? Again, I will make a chart here. Elongation factors IF2 bring amino acylated tRNA to the A site. EF2 नहीं, EFTU. Sorry, my mistake. Okay, there are some peoples. For example, I am saying this. कुछ ऐसे लोग होते हैं जो खुद कुछ नहीं करते, कॉल करेंगे दोस्तों को और बोलेंगे तू ये लेके आ, राइट? दे विल टेल समवन एल्स टू ब्रिंग सो एंड सो। ओके, वो खुद बहुत आलसी है, वो खुद तो कुछ नहीं करेंगे, दूसरों को बोलेंगे ये करो वो करो। ओके, सो सपोज कुछ लाना है, तो ये वो क्या बोलेंगे? तू ये लेके आ, राइट? सो दैट टू is this elongation factor 2. We can remember like this, as well as IF2 भी pronunciation is same, 2 and 2, right? So इन दोनों का काम क्या है? tRNA को लाना basically. Okay, तू लेके आ, I will just, this is an example, तू लेके आ. So this EF2 will bring as well as IF2 will bring the tRNA. So this is a EFTU bound to amino acylated tRNA along with GTP. So GTP तो चाहिए ही, because this is an energy rich compound. Okay, हैवी मॉलिक्यूल को लाना है तो GTP भी चाहिए, राइट? लाएगा और अटैच करेगा। ग्लाइसिन। ओके, गॉट इट? एंड बाद में इसका होगा सेम ईयर लाइक इनिशिएशन फैक्टर 2, बाइंडिंग होने के बाद GTP हाइड्रोलिसिस होके EFTU GDP रिलीज्ड। ओके, बाइंडिंग होने के बाद GTP का हाइड्रोलिसिस हुआ एंड देन द फैक्टर विल बी रिलीज्ड। अभी क्या होगा? दिस टू अमीनो एसिड्स will form the first peptide bond. First peptide bond formation. राइबोसोम का मूवमेंट 5 प्राइम टू 3 प्राइम। राइबोसोम अभी आगे जाएगा, राइबोसोम एंड tRNA जो मूवमेंट है, tRNA विल मूव इन द ऑपोजिट साइड, राइट? ऑपोजिट साइड। सो इसके बाद अभी क्या होगा? जो ए वाला, ए साइड पर जो है tRNA दैट विल मूव टू पी साइड, एंड पी साइड वाला tRNA विल मूव टू द ई साइड। गॉट इट? लाइक दिस मूवमेंट विल टेक प्लेस। इस इनिशिएटर tRNA को अभी एग्जिट होना है, right? So the next step is the translocation. Translocation. Okay, so I have drawn this diagrams here. अभी क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ट्रांसलोकेशन हुआ, राइट? ट्रांसलोकेशन मीन्स व्हाट? मूवमेंट ऑफ राइबोसोम। मूवमेंट ऑफ राइबोसोम 5 प्राइम टू 3 प्राइम। राइबोसोम का मूवमेंट होगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम। इसके वजह से जो tRNAs है, tRNAs की ऑपोजिट मूवमेंट होगी। जो पी साइड पर था वो ई साइड पर आएगा,
एंड जो ए साइड पर था वो बी साइड पर आएगा, राइट। एंड एज आई सेड देयर विल बी पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन दिस टू। ओके, फर्स्ट टू अमीनो एसिड्स के बीच में फर्स्ट पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे जो ये साइट है, अभी बी साइड पर अमीनो एसिड टीआरएनए है जिसमें ग्लाइसिन के साथ एफ मेट है। ओके, एफ मेट फर्स्ट, ग्लाइसिन सेकेंड, राइट। और यहाँ पे एक फैक्टर बाइंड होगा, EFG, EFG, EFG is a again GTP के साथ बाइंड होके यहाँ पर आता है। ओके, GTP के साथ, and now after binding this is attached with GDP. After binding it is attached to GDP. Okay, means again इसका भी काम सेम है कि प्री मैच्योर बाइंडिंग ना हो अमीनो एसिड टीआरएनए के साथ, राइट। सो यहाँ पे दिस इज अ लाइक अ टीआरएनए मिमिक, टीआरएनए मिमिक मतलब इसका टीआरएनए का और इसका स्ट्रक्चर सेम है। सो इट अटैचेस हियर सेम लाइक टीआरएनए, ओके, ड्यूरिंग द ट्रांसलोकेशन स्टेप। ओके, सो ट्रांसलोकेशन स्टेप में हेल्प कौन करता है, EFG along with GTP, बिकॉज अभी राइबोसोम को मूव करना है तो एनर्जी चाहिए, राइट। सो दिस इज द नेक्स्ट स्टेप इन द इलोंगेशन। ओके, फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ फर्स्ट स्टेप में, राइट। मतलब अमीनो एसिड टीआरएनए enters in the A site, peptide bond formation takes place, and then ट्रांसलोकेशन होगा विद द हेल्प ऑफ EFC। इसके बाद रिपीट होगा स्टेप, राइट। अगेन अभी ये GDP के साथ है तो यहाँ पे आई विल राइट हियर EFC विद GDP विल रिलीज, एंटर कौन करेगा यहाँ पे, अमीनो एसिड टीआरएनए, इसको लाएगा EFTU with GTP. So this will enter again in the A site, A site पर enter करेगा, then इसके बाद peptide bond formation, third step, and so on will be continued. Okay, ribosome will keep on moving from 5' to 3', और ऐसे करके एक एक टीआरएनए मतलब जो टीआरएनए है वो ई साइड से एग्जिट होंगे जैसे जैसे ट्रांसलोकेशन होगा, राइट। गॉट इट, इजी है। वन कोडॉन मींस 3 न्यूक्लियोटाइड्स, तो ऐसी शिफ्टिंग होगी ट्रांसलोकेशन के बाद, एंड सो जो टीआरएनए जो रिलीज हो जाएंगे, न्यू टीआरएनएस will be added in the A site, peptide formation will take place, and the rest will be continued. Got it? तो elongation factors में अभी क्या था, एक समरी, EFG with GTP, I will write there because इसको भी GTP चाहिए, एनर्जी चाहिए, as well as EFG को भी एनर्जी चाहिए, GTP ट्रांसलोकेशन, जो ट्रांसलोकेशन है उसमें हेल्प कर रहा है, एंड वी कैन से with GTP. Okay, see both of these enzymes factors, sorry, these are GTPase, GTPase है दोनों भी, EF2 and EFG. Okay, so as I said कि GTP हाइड्रोलिसिस होने के बाद EFTU as well as EFG GDP से बाउंड है, राइट, बट जो साइकिल है कंटिन्यू करनी है, ओके, ट्रांसलेशन की, सो अगेन दे हैव टू बाइंड विद GTP, राइट। GTP हाइड्रोलिसिस होने के बाद वो रिलीज हो जाती है फैक्टर्स, फिर से GDP को बाइंड होना है, तो EFG के केस में दैट इज सिंपल, ओके, बिकॉज EFG इसकी GTP के साथ हायर अफिनिटी है, राइट। EFG is having higher affinity for GTP, जो EFG है उसकी अफिनिटी GTP के लिए ज्यादा है देन GDP,
तो जब ये रिलीज होता है जीडीपी के साथ, तुरंत इसका इसका जीडीपी भी रिलीज हो जाएगा एंड जीडीपी अटैच हो जाएगा. Okay, when it is released rapidly, the GDP is also released and GDP is bound. Okay, GDP bind होगा, GDP रिलीज होगा EFG के साथ. बट EFTU, ओके, EFTU जो है जिसको tRNA को लाना है, उसको और एक प्रोटीन की जरूरत है जिसका नाम है TFTS. वी कैन से तेरे साथ. ओके, तेरे साथ. तो EFTU को ये साथ दे रहा है बिकॉज इसको इसका जीडीपी जो है एक्सचेंज करना है. राइट, सो दिस इज अ जीडीपी exchange factor. Remember this. कॉमन है इसके, व्हाट वी कैन से, इसके नेम में ही कॉमन है टी. सो ये टीयू को ही हेल्प करेगा टू एक्सचेंज द जीडीपी विद जीडीपी. राइट, बिकॉज उसका एफिनिटी से कुछ नहीं है, उसको इक्वल व्हाट वी कैन से इक्वल एफिनिटी होगी दोनों से भी. सो उसका जीडीपी निकालना है एंड जीडीपी को फिक्स करना है. सो दैट विल बी कैरीड आउट बाय EFTS, GDP exchange factor for EFTU. Got it. So this is all about elongation. Once again, I will summarize. Bound with GDP. Hmm. Okay, GTP से GDP कब होगा? When amino acid tRNA binding to A site. Right, तभी ये GDP का GDP में कन्वर्जन होगा. And GDP से GDP कब होगा? When EFTS will help. Got it. So this is a summary. Okay, and the one last important thing we have to remember is that one peptide bond formation, एक पेप्टाइड बॉन्ड जब फॉर्म होता है तभी वन एटीपी, okay, one molecule of ATP is required and two molecules of GTP are required. Okay, so this is very important. One peptide bond formation requires one molecule of ATP and two molecules of GTP. So ये one molecule of ATP tRNA charging, right? We know tRNA charging जब अमीनो एसिड tRNA पर बाइंड होता है तभी एक ATP हमें लगता है उस रिएक्शन के लिए, catalyzed by tRNA synthesis, right? And this two GTP from the elongation steps. Elongation steps. First is EFTU, right? And second is EFG. These two molecules requires GTP. Okay, ultimately one peptide bond formation requires one molecule of ATP and two molecules of GTP. That's very important thing we have to remember about this translation. Got it? Now is the last step, that is termination. Termination. Termination तो बहुत ही easy है, very much easy. See, there are release factors. Release factors. उसके बाद राइबोसोम रिसाइक्लिंग फैक्टर होता है. ओके, सो रिलीज फैक्टर्स होते हैं एंड राइबोसोम रिसाइक्लिंग फैक्टर्स होते हैं. सो रिलीज फैक्टर्स में देयर आर टाइप्स, क्लास 1, क्लास 2. क्लास 1 में RF1, RF2. क्लास 2 में RF3, राइट. RF1, RF2 ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेप्टाइड को रिलीज करने के लिए. ओके, रिलीज करेंगे RF1, RF2 हाइड्रोलिसिस ऑफ द पेप्टाइड. ओके, RF1, RF2 क्या करते हैं? हाइड्रोलिसिस ऑफ द पेप्टाइड. और RF3 जो है, RF3 RF1 और RF2 को हेल्प करेगा. ओके, RF3 RF1 को एंड RF2 को हेल्प करेगा टू डिसएसोसिएट फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स.
ओके, उनको बाहर निकालने के लिए RF3 हेल्प करेगा एंड RF1 RF2 विल remove the peptide, release the peptide. Got it? Okay, so RF factors, RF जो है release factors वो specific है. RF1 is for UAG, RF1 UAG, RF2 UGA. ओके, ये स्टॉप कोडॉन है, राइट, एंड दोनों भी UAA को रिकॉग्नाइज करेंगे. दिस इज कॉमन. UAA इज कॉमन, but RF1 is specific for UAG, RF2 is specific for UGA. These are the stop codons, right? Or termination codons, or we can say nonsense codons. Okay, so इसको recognize करेगा release factors RF1, RF2, and it will what it will do hydrolysis of peptide and its release. राइट, रिलीज होगा. और जब पेप्टाइड रिलीज होगा तभी भी राइबोसोम विल बी अटैच्ड. ओके, राइबोसोम अभी भी अटैच्ड है. सो राइबोसोम को डिसोशिएट करने में रोल है RRF का. ओके, आई विल राइट हियर, आई विल ड्रॉ हियर राइबोसोम. दिस इज फुल्ली एसोसिएटेड. अभी यहाँ पे है RRF, राइबोसोम रिसाइक्लिंग फैक्टर. राइबोसोम रिसाइक्लिंग फैक्टर राइबोसोम को डिसोशिएट करेगा. ओके, राइबोसोम डिसोशिएट एंड रिसाइक्लिंग कौन करता है? RRF, राइट. वन मोर थिंग अबाउट RF3 इज दैट RF3 जो RF1 एंड RF2 को रिमूव करेगा. RF3 इज द व्हाट वी कैन से, इसको GDP के साथ ज्यादा अफिनिटी है, ज्यादा पैर इसको GDP के साथ है रादर देन GDP. तो GDP के साथ बाउंड होता है ये, एंड द वर्क इज डन एज वेल एज GDP. और टर्मिनेशन के बाद क्या होगा? EFG विल बी रिक्रूटेड, EFG on the A side as well as IF2, sorry, IF1 and IF3. Okay, so this is the termination process. Now, this is a very nice chart which I got and very important. You can see all the things will be covered in this chart. See, we can see it binds to 30 as subunit and prevents amino acyl tRNA from binding, premature binding को रोकता है, right? I said same thing about IF1. IF2 will bring the initiator tRNA to the P site, okay, and with the help of GTP hydrolysis, which is required for 50 subunit binding. IF3 binds to 30 subunit. हाँ, E साइड के बाजू में, राइट, बाइंड होता है IF3, preventing it from associating with large subunit. प्रीमेचर बाइंडिंग प्रिवेंट करता है. elongation में EFTU है. TU will bring GTP amino acyl tRNA, right, binds GTP amino acyl tRNA को लाएगा E साइड. EFTS is EF2 activity regulate GTP exchange factor, right, and जो G है stimulate translocation, this is also GTP dependent. And termination release of peptide RF1 है catalyze release of polypeptide chain from tRNA and dissociation of translocation complex का dissociation भी करता है. Specific for UAA UAG termination codon. Okay, UAA दोनों में भी है, CRF2 में भी है. Behaves like RF1, right, same behavior but is specific for UGA. RF3 stimulates RF1 and RF2 release. Okay, so that's all for this prokaryotic translation video. I have tried to cover all the things in this single video. So I hope this video is helpful. If you find this video helpful, do let us know in the comment section and subscribe to the channel, guys. Stay tuned for the upcoming videos and share this video with your friends as much as possible. Thank you.